मई 2024। Current affairs in short, the 21st of May 2024. International news. China sanctions US defense firms. China sanctioned Boeing and other US defense companies over Taiwan arms sales, coinciding with Taiwan's presidential inauguration, highlighting regional tensions. Venezuela's glacial loss. Venezuela has likely become the first country to lose all its glaciers, as the Humboldt Glacier was reclassified as an ice field, a stark reminder of the climate crisis. Japan's 6G device launch. A Japanese consortium unveiled a prototype of the world's first high-speed 6G device, promising unprecedented data transfer rates and new possibilities. अंतर्राष्ट्रीय समाचार. चीन ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया. चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण बोइंग और अन्य अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया. ये प्रतिबंध ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के समय लगाया गया, जिससे क्षेत्रीय तनाव उजागर हुआ. वेनेजुएला के ग्लेशियर का विनाश. वेनेजुएला संभवतः अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है, क्योंकि हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फ क्षेत्र के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है, जो जलवायु संकट की एक कठोर याद दिलाता है. जापान का 6G डिवाइस लॉन्च. एक जापानी कंसोर्टियम ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस के प्रोटोटाइप का अनावरण किया, जिसमें अभूतपूर्व डेटा ट्रांसफर दर और नई संभावनाओं का वादा किया गया. बैंकिंग न्यूज. SBI General's Surety Bond Bima. SBI General Insurance launched Surety Bond Bima to support infrastructure projects with security arrangements. Bank of Maharashtra's growth. Bank of Maharashtra led public sector banks in business growth for FY24, with a 15.94% rise in total business and a 15.66% increase in deposits. Banking समाचार. SBI General का श्योरिटी बॉन्ड बीमा. SBI जनरल इंश्योरेंस ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए श्योरिटी बॉन्ड बीमा शुरू किया. बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वृद्धि. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 24 में कारोबार वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नेतृत्व किया, जिसमें कुल कारोबार में 15.94% की वृद्धि और जमा में 15.66% की वृद्धि हुई. बिजनेस न्यूज. IRDAI Surety Bond Regulations. The IRDAI lowered solvency requirements and removed exposure limits for surety bonds to boost participation in infrastructure projects. व्यापार समाचार. IRDAI Surety Bond विनियम. IRDAI ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सॉल्वेंसी आवश्यकताओं को कम कर दिया और श्योरिटी बॉन्ड के लिए जोखिम सीमाएं हटा दी. इकोनॉमी न्यूज. India's GDP growth. India Ratings and Research projects a 6.7% GDP growth rate for Q4 and around 7% for FY24, reflecting robust economic performance. RXILS treads milestone. RXILS trade receivables discounting system platform surpassed 1 trillion rupees in MSME invoice financing, supporting economic growth. Fusion Microfinance loan. Fusion Microfinance secured a $25 million loan from the U.S. International Development Finance Corporation to expand and empower rural women entrepreneurs. SEBI LODR amendments. SEBI amended regulations to enhance market capitalization computation for listed companies, improving regulatory clarity. अर्थव्यवस्था समाचार. भारत की जीडीपी वृद्धि. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चौथी तिमाही के लिए 6.7% और वित्त वर्ष 24 के लिए लगभग 7% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है. RXIL का TREDS मील का पत्थर. RXIL के ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ने MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग में ₹1 ट्रिलियन को पार कर लिया, जिससे आर्थिक विकास को समर्थन मिला. फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ऋण. फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण महिला उद्यमियों के विस्तार और सशक्तिकरण के लिए अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम से $25 मिलियन का ऋण प्राप्त किया. सेबी LODR संशोधन. सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बाजार पूंजीकरण गणना को बढ़ाने के लिए विनियमों में संशोधन किया, जिससे नियामक स्पष्टता में सुधार हुआ. अपॉइंटमेंट्स न्यूज. Pradeep Natarajan at IDFC First Bank. The RBI approved Pradeep Natarajan as whole-time director of IDFC First Bank for 3 years, strengthening its leadership. नियुक्तियां समाचार.
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में प्रदीप नटराजन। आरबीआई ने प्रदीप नटराजन को 3 साल के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में मंजूरी दी, जिससे बैंक का नेतृत्व मजबूत हुआ। रैंक्स एंड रिपोर्ट्स न्यूज। Ambani and Adani among top 15 richest. Mukesh Ambani and Gautam Adani secured positions in the Bloomberg Billionaires Index top 15, with net worths of $100 billion or more. Ronaldo highest paid athlete. Cristiano Ronaldo topped Forbes list of highest paid athletes, driven by significant earnings in Saudi Arabia. रैंक और रिपोर्ट समाचार। अंबानी और अदानी शीर्ष 15 सबसे अमीर लोगों में शामिल। मुकेश अंबानी और गौतम अदानी ने $100 अरब या उससे अधिक की कुल संपत्ति के साथ ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के शीर्ष 15 में स्थान हासिल किया। रोनाल्डो सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब में उल्लेखनीय कमाई के कारण फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर हैं। स्पोर्ट्स न्यूज। Nandini Dairy sponsors Scotland T20. Scotland's T20 World Cup jersey features Karnataka Milk Federation's Nandini logo, marking a unique partnership. खेल समाचार। नंदिनी डेयरी स्कॉटलैंड T20 को प्रायोजित करेगी। स्कॉटलैंड की T20 विश्व कप जर्सी पर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का नंदिनी लोगो अंकित है, जो एक अनूठी साझेदारी को दर्शाता है। Important days. World Bee Day 2024. Observed on May 20th, World Bee Day 2024 theme, Be Engaged with Youth, emphasizes involving young people in bee conservation. महत्वपूर्ण दिन। विश्व मधुमक्खी दिवस 2024। 20 मई को मनाया जाने वाला विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 का विषय, युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव, मधुमक्खी संरक्षण में युवाओं को शामिल करने पर जोर देता है। Obituaries News. Indian officer killed in Gaza, Colonel Prated. Vabhav Anil Kale, serving with the UN in Gaza, was killed on May 13, 2024, in an attack, marking the first international casualty in the latest Israel-Hamas conflict. शोक संदेश समाचार। गाजा में भारतीय अधिकारी की हत्या। गाजा में संयुक्त राष्ट्र के साथ सेवारत कर्नल, सेवानिवृत्त वैभव अनिल काले की 13 मई 2024 को एक हमले में मौत हो गई, जो नवीनतम इजरायल हमास संघर्ष में पहली अंतर्राष्ट्रीय हताहती थी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल लाइव स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।